So, ladies and gentlemen, in the last class, what we did was Naisargik Mitrata, natural friendship, and which will remain same for all. Remember this, right? So that's the first statement I want to give, which will remain almost the same for everyone. It's natural, like for every kundli, Jupiter will always be the natural significator of the houses that he is for every horoscope, no matter what your lagna is, no matter what your nakshatra is. Mangal will always be natural significator for the third and the sixth house for everyone. It is not going to change because it is natural. Naisargik. Naisargik means same. By law, it is natural. Okay, so when I was teaching, now when I teach for anyone, for any subject, for any dasha, when I'll say Naisargik dasha, Naisargik, Mitrata, that means it is going to be common for everyone. Remember this. Okay. So Naisargik means natural, like Naisargik Karka, natural significators. So natural significators are, are fixed for everyone, isn't? Okay. Now, there is step number 2 and step number 3. Now we will upgrade ourselves from the natural mitrata to a temporary mitrata, which is also called tatkalika mitrata. So I will teach you the method how to calculate tatkalita or tatkalik mitrata, temporary friendship in your kundli. And now we have natural friendship. Okay, now listen to me very carefully. And we have a temporary friendship. We've got two verticals here. Okay, from these two verticals, we will calculate the exact friendship. Can we? See, natural is common for everyone. Hello. And the temporary friendship is what we calculate now. Okay. And then we found out the compound friendship or mitrata. Like how? For an example, if a planet is friendly to Surya in the natural Naisargik mitrata or Naisargik sambandha. Suppose, Mangala is Ati Mitra or Mitra to Surya. In the natural sambandha, Mitra hai. In the temporary friendship, okay, now it becomes a enemy. With the formula I'll teach you. I'm just giving an example. So the compound friendship, which is natural friendship plus temporary friendship. So Mitra plus enemy is equal to neutral. So eventually Mangala will become neutral, not the best friend. Okay. So you'll have the list of all the planets that are eventually going to support Surya. You'll get the final friendship and enmity, being a great friend or a great enemy. Now, once you know that these are the final results of the friendship with Surya, friend, enemy, great friend. And now you know which planets will support Surya. Friends will support Surya. Neutrals will be standing wherever Surya is. Okay, maybe not. And enemies are going to go against the Surya. So what happens?
if you are running a Surya Dasha, now you know which planets will support Surya and which planets will not support Surya. Hello? Now you know which planets, what antardashas will be good, what antardashas will be bad. What pratyantara dashas will be good, what pratyantaras will be bad. The exact meaning of friendship and enmity you will understand today. What people will give you tears in the eyes all the time, and what people will become friends. So if Mercury becomes a Ati Mitra for your Lagna, suppose my Lagna is Mangal, okay, I identified what all planets are friends of the Mangal and what all enemies are of the Mangal. So the people who have the Lagnas of the enemy friends, suppose Mangal मेरा लगन है और शुक्र एनिमी आ जाता है उसमें, सो जितने भी लोग जिनका लग्नेश शुक्र है या जिनकी कुंडली में शुक्र पावरफुल बैठा है, वो लोग मुझे रुलाएंगे. वो हो सकता है मेरे एनिमीज हो या ना हो, बट दे आर गोइंग टू टॉर्चर मी. वो हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकता है, बेटा भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, बॉस भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है. लगन के जो मित्र और एनिमी है वो भी आपको पता लग जाएंगे. कभी कभी मान लो शुक्र लगन का बंदा आ गया लेकिन उसका शुक्र अस्त है बेचारे का, लग्नेश 0 है, लग्नेश स्ट्रांग नहीं है, तो वो बंदा दुश्मन है लेकिन वो मुझे तड़पाएगा नहीं. जैसे मेरा भाई है या मेरी बहन है या मेरा साला है, उसका वो आ गया, वो मेरे से चिढ़ता है लेकिन वो मेरे को नुकसान नहीं दे रहा मेरा साला. आप अंडरस्टैंड कर रहे हो? He is against me, he doesn't like me, but he's saying, my sister is married to this chap, so I'll not do anything bad for him. You understand what I'm saying? तो अगर आपको कंपाउंड फ्रेंडशिप आज समझ में आ जाए आपकी कुंडली की, तो कितना कुछ समझ में आ जाएगा आज कुंडली के बारे में. लोग मेरे से पूछते हैं, नवनीत मुझे बताना जरा हमारी अगली अंतरदशा कैसी होगी. अब आप लोग क्या जाओगे, आप D1 चार्ट पे जाओगे, अंतरदशा वाला ग्रह देखोगे कैसा बैठा है, मारक बैठा है, नॉन भाव अवस्था देखोगे और बकवास कर दोगे. राइट? वी हैव नेवर गॉन टू दी वर्गस. अगर आप वर्गस में जाओगे, सपोज करो एक ग्रह लगन में आपका दुश्मन बन के बैठा है, जो फॉर्मूला मैं आपको कंपाउंड का बताऊंगा, अगर वही फॉर्मूला आप D9 पे अप्लाई करते हो और वही फ्रेंड जो है वो फिर दुश्मन से मित्र हो गया, इवेंचुअली वी गॉट मोर डीप इनटू इट, तो आपको मैं बता दूंगा कि शादी से पहले तो हो सकता है तुम्हारी ये अंतरदशा खराब गई हो, लेकिन शादी के बाद ये अच्छी जाएगी. आप समझे कि नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूं? तो हमारे पास 7 ऐसे वर्ग हैं जिनको हम इस फॉर्मूला में कंसीडर करते हैं, उसको हम बोलते हैं सप्तवर्गा बल. तो यहां से अगली एप्लीकेशन क्या निकलती है, हमें यह पता लगता है कि आपको कौन सी ऐसा चार्ट है जो आपको रुलाएगा. आपको D1 रुलाएगा, यानी कि आपका शरीर, आपकी बीमारियां, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी षड रिपुज, ये आपको रुलाएंगी. आपकी गंदी आदतें, इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आएगी लाइफ में. या D9 आपको रुलाएगा, आपकी पत्नी आपको रुलाएगी. या D7 रुलाएगा, आपके बच्चे आपको रुलाएंगे. They will give you rudras in your eyes, that tears in the eyes. या D12 रुलाएगा आपको, पेरेंट्स.
आपको पेरेंट्स ही बहुत तंग करेंगे। हाँ, कौन तंग करेगा? या आपको D2 चार्ट रूल आएगा? व्हाट इज D2? वेल्थ, पैसा। एक एक पैसे के लिए आप मोहताज फील करोगे। कौन रूल आएगा आपको? आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो अपनी कुंडली से। कभी कभी क्या होता है कि आपका भाई या आपका बहन, आपका जो सिबलिंग्स है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, सो कभी कभी सिबलिंग्स बहुत रूल आते हैं। एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत होती है, याद रखना। एक मर्द में हिम्मत नहीं होती किसी औरत को बर्बाद करने की, उसके बीच में एक फीमेल आती है तब बर्बाद करती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो वो आपकी बहन या आपकी कजन या आपकी फ्रेंड जिसने आपकी जिंदगी खराब कर दी, आई थी बहन बन के और बन के कुछ और बैठ गई। यू नो, एक फीमेल को सबसे ज्यादा एक फीमेल ही खराब कर सकती है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। चाहे वो बहन के रूप में हो, माँ के रूप में हो, सास के रूप में हो, बहू के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, एक फीमेल की सबसे बड़ी दुश्मन फीमेल है। ये मैं नहीं कह रहा, ये चाणक्य सूत्र कहता है। और चाणक्य सूत्र जो है वो एब्सोल्युटली एक्यूरेट है, एब्सोल्युटली एक्यूरेट। सो सप्तवर्गा बल से, सपोज करो सूर्य का सप्तवर्गा बल चेक करते हैं। मतलब सूर्य को D1 में देखा, फिर D9 में देखा, D30 में देखा, D7 में देखा, D3 में देखा। तो सूर्य का 7 वर्गों में 7 डिविजनल चार्ट्स में बल पता लग गया। उसके हर एक वर्ग के पॉइंट्स दिए गए हैं ज्योतिष में। तो आपको सूर्य का कॉम्यूटेटिव बल पता लग जाता है एंड में, जो मैं कल सिखाऊंगा। चंद्र का कॉम्यूटेटिव पता लग जाता है और वहां से आपको रियलाइज हो जाता है कि आपकी कुंडली में सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रह कौन सा है और सबसे वीक ग्रह कौन सा है इन ऑल द डिविजनल चार्ट्स। वाओ, दैट्स द थर्ड एप्लीकेशन। सभी वर्गर्स में और इंडिविजुअल वर्ग में भी पता लग गया। इंडिविजुअल में पता लग गया कि इसमें सबसे वीक था। टोटल स्कोर देखोगे तो आप देखोगे D9 ने सबसे कम स्कोर दिया सूर्य को, तो मतलब D9 में सबसे ज्यादा ट्रबल में है सूर्य। बोलो D7 में पावरफुल है, तो बच्चों के लिए सूर्य बहुत पावरफुल है मेरा। अब आपको सभी 9 ग्रहों का सप्तवर्ग बल पता लग जाएगा। फिर आप फर्दर कैलकुलेशन क्या कर सकते हो इसमें? फिर आप फर्दर कैलकुलेशन ये कर सकते हो इसमें कि आप देख सकते हो कि आपका फर्स्ट लॉर्ड मंगल वो ज्यादा बलवान है कि छठे भाव का स्वामी ज्यादा बलवान है। तो आपको ये पता लगेगा कि षड रिपु आपसे हार जाएगी कि आप षड रिपु से हार जाओगे। आपका लगन वीक है कि नहीं है। आपका फर्स्ट हाउस का जो प्लैनेट है लग्नेश, वो बलवान है कि सप्तमेश बलवान है। मतलब पत्नी आपसे ज्यादा बलवान है, आपका स्पाउस आपसे ज्यादा बलवान है। And what is the way to make, I will give you remedies to make your lagna powerful. I will give you ways to make your 10th lord powerful, wealth house powerful. So am I making some sense to you, ladies and gentlemen? Yes, no, maybe, right? Am I a little logical to you, what I'm trying to tell you? You will realize it yourself. अपनी कुंडली में आप जाके देखोगे कि क्या चीज हो रही है, और फिर आप मेरे पास रेमेडी के लिए आओगे तो मैं आपको रेमेडी दे सकता हूं।
आपको समझ में भी आएगा कि मैंने आपको कुछ रेमेडीज क्यों दी है, क्योंकि मैंने किसी को भी कोई भी रेमेडी सप्तवर्गा बल देखे बिना नहीं दी कभी लाइफ में। I've always gone through Saptavarga Bal. I've gone through the friendships and enmities. ये कैसे कैसे होगा, क्यों होगा, वो जब आप इस चीज को प्रैक्टिस कर लोगे तो जब कुंडली खोलोगे तो 1 मिनट में आपको पता लग जाएगा कि जब आप 100 कुंडलियों पे काम कर लोगे तो आपको ये कैलकुलेट करना और देखना इज लाइक अ पीनट्स। अभी आपको बहुत बड़ा लग रहा है, जैसे जब आप छोटे थे आपको चलना कितना मुश्किल लगता, चलते थे गिरते थे। अब आप लोग दौड़ते हो। यू अंडरस्टैंड, दैट्स हाउ ज्योतिष इज। तो व्हाइट स्क्रीन शेयर करता हूं। आई हैव गिवन यू द एजेंडा, व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे एंड टुमारो। Tomorrow in the evening there is a Jagannath Prakat Utsav in Ludhiana, and I am going there. I will make a vlog from there while going to Jagannath Prakat Utsav and then doing the darshans and everything, singing, dancing in the name of Jagannath Ji Krishna, and I'll upload it on the YouTube. So the class for tomorrow will be 7 a.m. IST. Sunday morning I am going to disturb you, right? I hope you people will get disturbed, or maybe not. I have no idea. But 7 in the morning means you will wake up at 6, take a shower, and then come for the class. But 99% people will say, who will take a shower? We'll stand, we'll take a cup of tea, and will not turn on the camera and bed में लेटे लेटे क्लास लगा लेंगे। 6 बजे की क्लास तो ऐसे ही होती है, राइट? तो कोई बात नहीं, ऐसे भी चलेगा। बट अगर शाम को मदिरा वदिरा पी हुई या कुछ तामसिक खाना खाया हुआ फिर नहा के क्लास लगाना भी, ठीक है? क्योंकि कुछ लिखना भी होता है, ठीक है? और वैसे तो आप सारे सात्विक हो, मेरे साथ सात्विक मूवमेंट में हो, तो बिना नहाए भी क्लास लगा सकते हो, ऐसी बात नहीं। एनीवेज, सो लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड। ओके, so in the whiteboard, ladies and gentlemen, I am not going to teach you the Nasargic Bala. Okay, that's not I'm going to teach you. You know what is a Nasargic Bala. Now I'm going to teach you something called temporary friendship. So what is the mean of a temporary friendship? In Sanskrit, it is called Tatkalika. Tatkalika Sambandha. Tatkalika Sambandha. There is a formula for it. This is called temporary friendship. How many of you had temporary friendships? Huh? Everyone had, in the school, in the college. I had many in the school. Well, the temporary friendship, eventually the natural friendship and the temporary friendship results in a final friendship called marriage at times, right? Then you become permanent enemy, no? What is the formula I taught you? Friend plus enemy is equal to neutral. So should I write those 5 things here again, or you remember? Friendship, friendship, ati friendship, great friendship. Friendship plus enemy, neutral. Friendship plus some, neutral, is equal to friendship. Enemy plus neutral is equal to enemy. Enemy plus enemy is equal to ati enemy, great enemy. Fine, 5 relationships. I hope you remember them, right? Do you want me to write it here again?
If No, people, sir. okay, great. So if No, sir, people, we know it. if people like the morning classes, then we might do it permanently. If you like the morning class, so that your Saturday and Sunday evenings are free and you can have fun. If you like tomorrow's class 7 in the morning, then I will take the decision from everyone. If everyone says yes, Guruji, do it, and we can vote it. There is a technique to vote it in the Telegram group. So we will vote it. If people say yes, and then after the class you guys can vote it, Saturday and Sunday 7 a.m. then we can do it. It will be great. So temporary friendship, ladies and gentlemen, उसके लिए मुझे एक कुंडली बनानी पड़ेगी। यहाँ पे राशियों का खेल खत्म हो जाएगा और यहाँ पर घरों का खेल शुरू हो जाएगा। ध्यान से देखना, सिर्फ 2 मिनट अगर आपने पूरा कंसंट्रेशन के साथ देखा, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, and this is a formula which is written in the Shastra. I have not researched why this formula was given, but definitely we have certain thoughts on it. But the most important thing is to understand. Okay. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. From the 10th house, if we go anti-clockwise up to the 4th house, I'm not going to say the shloka for you. It's not worth it, because 90% of you don't know Sanskrit. From the 10th house, if you go towards the 4th house, excluding the Lagna, so that is why I marked in red. Excluding, not including. Excluding the Lagna, all the planets sitting in these houses will be friends. I will do it practically with you, then you people will understand it more. So friends कौन से हुए? Friends हुए planets sitting in the 10th house, 11th house, 12th house, 2nd house, 3rd house, and the 4th house. No Rashis, house, no Rashi lords, no Rashi lords. Don't consider the Rashi lords of these houses. I am saying planets sitting. ग्रहज, जो ग्रह विराजमान है इन घरों में. Enemies, simple, exactly the opposite. From 5 to 9, including Lagna. Can I write 5, 6, 7, 8, 9, and 1? Let us practically apply this. Let us practically
apply this. You see, suppose I make my kundli. Now there is a catch. You people will, I know that you people will be little bit confused here. I know that. Sun, Mars, and Mercury. Surya, Mangal, Venus, and Rahu. Jupiter, Saturn. Moon, Ketu. So can you tell me which planets are friends to my Surya? And what planets are enemy to my Surya? Who will tell me this? Shreya, tell me. सर सन के फ्रेंड्स हो गए मार्स, मर्करी, वीनस, राहु एंड केतु. Mars, Mercury, Venus, Rahu, and Ketu? Absolutely wrong. Sir, Jupiter, Saturn, Hmm. Moon And नहीं, वन में तो कुछ है ही नहीं. Only Ketu, Guruji. Wow, only Ketu, huh? Great Yes. logics are being applied. Yes. Fantastic. Now look at the screen very carefully. I knew you people think like a nursery class students. You are not going to think logically. You will develop logical brain with me over the period of time. I did the Good. same mistakes. Ketu, Mars and Mercury. Why? Please listen to me very carefully. First, we have to see from the Surya, look at the second house. From the Surya. See, you are finding a friendship for the Surya. So, for Surya से ये घर देखने हैं. Friends, तो सूर्य से जो दूसरा घर है उसमें कौन कौन है? शुक्र है, राहु है. उसके बाद तीसरे घर में कोई नहीं है. चौथे घर में जुपिटर और सैटर्न है. उसके बाद फिर दूसरा घर, तीसरा, चौथा. हाँ, उसके बाद अगला कौन सा है? फिर 10, 11, 12. अब 10, 11, 12 कौन सा हुआ? ये हुआ 10, ये हुआ 11वां और ये हुआ 12वां. ये वाले घर हुए ना. सो यहां पे फ्रेंड्स कौन कौन से बने? सेकंड हाउस में वीनस एंड राहु है. फ्रॉम सूर्य सेकंड हाउस में. उसके बाद थर्ड हाउस में कोई नहीं है. फोर्थ हाउस में कौन है? जुपिटर, सैटर्न. 10th, 11 और 12th हाउस में कोई नहीं है. सो ये बने 4 मित्र. एनिमीज कौन कौन से बने? यहां से सूर्य से लगन पहला घर ही. सो मेरे एनिमीज बने मार्स एंड मर्करी. मार्स एंड मर्करी बने ना, पहले घर में ही बैठे हैं सूर्य से इन द सेम हाउस. और फिर 5वां घर यहां से काउंट करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5 कोई नहीं बैठा. छठे में चंद्रमा बैठा है, मून बिकम्स द एनिमी. ठीक है. 7वें में कोई नहीं बैठा. 8वें में कौन बैठा है? केतु. केतु बिकम्स द एनिमी. ठीक है. उसके बाद 9वें में कौन बैठा है? कोई भी नहीं बैठा. सो these 4 planets are friends and these 4 planets are enemies based on the तत्कालिका संबंध. आप लोगों ने पता क्या सोचा कि यहां से काउंट करते हैं जैसे गुरुजी ने बताया. उसका फायदा क्या होगा? आपको ये देखो ना, हमने तो उस ग्रह से कैलकुलेट करना है जिसके बारे में हम देखना चाहते हैं.
आई थिंक सुनंदा ने बीच में रिप्लाई दिया था, शी वाज राइट. Yes, Sunanda, sir. yeah, Yes, sir. she was right. She was going on the right track. Even Nandita was going on the right track. जिन्होंने सिर्फ केतु बोला था, he was on the right track, लेकिन उन्होंने सूर्य से शुरू नहीं किया. अब देखो, ध्यान से देखो, वीनस, राहु, जुपिटर, सैटर्न, ये मेरे बन गए टेम्परेरी और ये बन गए एनिमीज, है ना. और अब जब हम सॉफ्टवेयर में जाते हैं, सॉफ्टवेयर में हम कंसिडर करते हैं, तो सॉफ्टवेयर में आप देखो क्या हुआ. सॉफ्टवेयर में टेम्परेरी रिलेशनशिप मेरी कुंडली का खुला हुआ है यहाँ पे. अभी हमने मैन्युअली कैलकुलेट किया है. जो नेचुरल था उसमें ये फ्रेंड्स थे आपके सामने है, जो आपने पहले कैलकुलेट किए थे. अब टेम्परेरी में सूर्य का हो नहीं सकता क्योंकि वो सूर्य खुद है. चंद्रमा क्या था, अभी कैलकुलेट किया था आपने? हेलो. enemy, Yes, sir. enemy, Enemy. मंगल क्या था? यस. Enemy. एनिमी. मरकरी क्या था? Enemy. जुपिटर क्या था? फ्रेंड. वीनस क्या था? फ्रेंड. फ्रेंड. सैटर्न क्या था? फ्रेंड. फ्रेंड. राहु क्या था? फ्रेंड. फ्रेंड. और केतु क्या था? एनिमी. एनिमी. ये फॉर्मूला लग गया यहाँ पे, Yes, sir. सॉफ्टवेयर ने लगा दिया ये फॉर्मूला. आप सबकी कैलकुलेट कर सकते हो यहां से. आपको टेम्परेरी रिलेशनशिप अपनी कुंडली में निकालना आया कि नहीं आया? आई नीड थम्स अप्स, नहीं तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे. आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू 10 times. और बेटर आइडिया इज यू कैन वॉच दिस वीडियो 10 times. दैट विल Sir, हेल्प मी. हाँ हरे जी. कृष्ण गुरुजी. सर फिर तो जिस घर में जैसे सन के साथ 5 प्लैनेट है तो पांचों एनिमी हो गए. 5 एनिमी हो गए, 6 एनिमी हो गए, 7 एनिमी हो गए, 8 एनिमी हो गए. फिर तो सर कंजंक्शंस मतलब टेम्पररी जो अभी उनकी अभी एनिमी. अभी रुको जरा. अभी रुको, वेट, वी विल गो टू द कंपाउंड फ्रेंडशिप. वो सारे जो फ्रेंड्स थे सम हो जाएंगे ना, क्यों घबराते हो? अगर एनिमी हो गए तो सम हो जाएंगे, क्यों डरते हो? नुकसान नहीं करेंगे. ठीक है, अभी रुको. अब आपको बड़ी जल्दी एक टेक्निक सिखाते हैं, वेरी क्विकली. I'll go to the software. You see now, सब स्क्रीन की तरफ देखेंगे, कोई इधर उधर नहीं देखेगा, कोई लिखेगा नहीं. राइट, मुझे पता आप सारे लेखक हैं. अभी आप 10 मिनट रुक जाइए. ओके, यू ऑल आर ऑथर्स, आई नो दैट. ओके, प्लीज. कंपाउंड रिलेशनशिप इज कमिंग हाउ? सूर्य, मैंने यहां पे लिख दिया सूर्य. चंद्र मेरा यहां पे मित्र था, और टेम्परेरी में क्या आया? एनिमी. सो फ्रेंड प्लस एनिमी इज इक्वल टू न्यूट्रल. फाइनल आउटकम क्या लिखी हुई है यहाँ पे? न्यूट्रल. न्यूट्रल. मंगल दोस्त था और मंगल यहाँ पे एनिमी आया, क्या हुआ? न्यूट्रल. मर्करी न्यूट्रल था और यहाँ पे एनिमी आया, क्या आया फाइनली? एनिमी. एनिमी. न्यूट्रल प्लस एनिमी इज एनिमी, राइट. उसके बाद जुपिटर फ्रेंडशिप था, फ्रेंड था, और यहाँ पे फ्रेंड था, तो जुपिटर क्या बन गया? अति मित्र, ग्रेट फ्रेंड. लिखा है यहाँ पे ग्रेट फ्रेंड. फिर वीनस एनिमी था, यहाँ पे फ्रेंड हुआ, तो वीनस बन गया न्यूट्रल. फिर यहाँ पे सैटर्न एनिमी था, यहाँ पे फ्रेंड था, फिर से हो गया न्यूट्रल. राहु यहाँ पे एनिमी था, यहाँ पर फ्रेंड था, तो क्या हो गया? न्यूट्रल. केतु यहाँ पे एनिमी था, यहाँ पे भी एनिमी था, तो क्या हो गया? ग्रेट एनिमी ऑफ द सूर्य. आई लॉस्ट माय फादर इन द केतु महादशा. It was the greatest enemy of my Surya. You see?
And you know, this Chandra, I got all the relationship. Mangala, I got. So Mangal is my ascendant. So who is going to give me the support system? Sun is neutral, Moon is neutral, Mercury is the great enemy, Jupiter is going to give me support in my life, Venus is going to give me support in my life, Saturn is going to give me support in my life, and the remainings are going to be the neutral. Only graha which is going to give me problem is the Mercury. It is a great enemy. So who is Mercury? Your brother, your younger brother, not the elder sister or a brother. Younger brother can give me the problem. My communication. पहले किसी को किसी बात पे हाँ करना, फिर जान बचाते फिरना, जो शिवजी के साथ होता है. हाँ, प्रॉब्लम. You see, Mercury. Huh? And then I am going in my Venus dasha. Venus Mahadasha, Venus Antardasha. Good. Venus Mahadasha, Surya Antardasha. Neutral, not bad. Venus Mahadasha, Chandra Antardasha. Bad. Venus Mahadasha, Mangal Antardasha. Good. Venus Mahadasha, Buddha Antardasha. Fantastic. Venus Mahadasha, Jupiter Antardasha. Great. Venus Mahadasha, Shani Antardasha, fantastic. Venus Mahadasha, Rahu Antardasha, average. Venus Mahadasha, Ketu Antardasha, average. Oh, Venus Dasha is almost very, very good. Oh, but when my Ketu Dasha, oh, Venus Mahadasha, Surya, great enemy, bad. Moon was neutral, Mangal was neutral, and then Mercury was bad, Jupiter was bad, Saturn was bad, Rahu was bad, very, very bad Saturn, very, very bad Rahu. So Ketu Dasha was a disaster, and in Ketu Mahadasha, Rahu Antardasha, I lost my father. You see, this is how you look at things. This is the real friendship and enmity. We can apply this in various vargas and get results from various vargas, and there is a technique that I will teach you tomorrow, because if I teach you, this will be gone from your head. There is a fantastic technique to understand the Saptavarga Bala, because उसमें क्या होता है, उसमें विरूपा पॉइंट्स होते हैं. कौन से होते हैं? विरूपा पॉइंट्स. विरूपा is the word used in the Shastra. विरूपा पॉइंट्स, जिसमें मूल त्रिकोण को 45 नंबर दिए जाते हैं, अति मित्र को 30 या स्व क्षेत्र को 30 है, फिर अति मित्र को 20 है, फिर मित्र को 15 है. इस तरह से सारा एक टेबल है. वो फिर हम आपको बताएंगे कि डिविजनल में वो क्या हो रहा था, उसके अकॉर्डिंगली पॉइंट्स दिए जाते हैं. आपके लगन का बल निकल के आता है, आपके D9 का बल निकल के आता है, D10 का, सभी ग्रहों, सभी डिविजनल चार्ट्स का बल निकल के आता है. सूर्य के लिए, मंगल के लिए, चंद्र के लिए एज ए कुंडली का भी बल निकलता है, एक चार्ट का बल निकलता है. तो वहां से आपको चीजें और क्लियर होती हैं लाइफ के बारे में. इजी था? इजी था क्या? आपके टेक्निक की वजह से इजी हो गया. अदरवाइज टफ था. देखो अपनी अपनी दशा देखो, जो प्लैनेट्स की गई है. इंटरेस्टिंग है ये, बहुत इंटरेस्टिंग हो गया. धन्यवाद, आपने ये कहा. तो ये गुरु टीचर पे बहुत सी चीजें डिपेंड करती हैं, और शिष्यों पे भी डिपेंड करती है कि वो समझते हैं, उसको सुनते हैं,
नहीं समझोगे, नहीं सुनोगे तो अब कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा आपके। ठन ठन गोपाल। अभी आपको अपनी पिछली दशा देखो, देखो उसमें अंतरों में जो आपके एनिमिकल प्लैनेट्स थे उन्होंने कितना तड़फाया होगा आपको उस पर्टिकुलर दशा में। और जैसे ही मित्र ग्रह की अंतरा आया, आपको लाइफ में चीजें धीरे धीरे ठीक होने लग गई। नो 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 नो, वी कांट प्रिडिक्ट आवर ओन डेथ। नो 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 नो, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट आवर ओन डेथ। आई मीन मृत्यु के जो कैलकुलेशन है वो जेमिनी सूत्र में एक्यूरेट है, वो आपको मैं इससे अगले ईयर में करवाऊंगा। जो मृत्यु की जो कैलकुलेशन है वो केवल जेमिनी में एक्यूरेट आती है, ये बात आप याद रखना। पराशरी में मृत्यु की कैलकुलेशन के लिए बहुत ज्यादा ज्ञान चाहिए, और कलयुग में प्रॉब्लम ये है कि आयु छोटी है। 60 70 65 70 80 85 साल की आयु में आप पराशर और शास्त्र पूरा नहीं पढ़ सकते। आयु इज लेस। सतयुग में आयु ज्यादा होती है तो आप इसको पढ़ लेते हो, मास्टर कर लेते हो। कलयुग में जब तक आप मास्टर करने लगते हो आपकी डेथ हो जाती है। कलयुग में बेसिकली आयु कम है, जिसके कारण आप इतने सारे शास्त्रों को मास्टर नहीं कर सकते। गुरु चले जाते हैं, गुरु के वर्ड्स साथ रह जाते हैं जीवन के अंदर। दो चीजें हैं, एक काम हम कर सकते हैं कि जो मैंने आपको कल कराना है सुबह, वो मैं अभी 5 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं, मैं ग्रीन टी पी लेता हूं, आप भी पी लो, तो हम अभी कर लेते हैं। उससे क्या होगा कि कल आपको सारा टाइम मिल जाएगा वो 7 के 7 वर्गज में से बल निकालने के लिए। सप्तवर्ग बल, लॉट ऑफ होमवर्क विल बी देयर, क्योंकि मैं आपको चाहता हूं कि आप मैनुअली ये कैलकुलेट करो, या यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं, मन को शांत कर लेते हैं और मॉर्निंग में 7 बजे जो है उसको सीख लेते हैं। सो टेल मी, just type it on the chat, let's do it now or let's do it in the morning, the second major step. बताओ, how do you want to do it? Let's do it now. Now? Yes. Perfect. A lot of people are doing it now. Let me take a break of 5 minutes. You also take a break. I'll take my green tea. We start again. So Yes? मैंने ना ये I have done it already Yeah. in my another ज्योतिष class, जी. but concept नहीं पता था। हम्म, Ultimately वो सिर्फ दो चार्ट दिए थे हमें कि ये चार्ट रट लो, आए है। अच्छा। और और बिल्कुल नहीं पता था ये निकल के कहाँ से आ रहा है। अच्छा। तो इसलिए I cannot mug up, तो मुझे आज तक वो याद ही नहीं हुआ है, because वो याद करना था। याद कैसे कर लेकिन सकते हो? आप वो तो हर कुंडली के लिए यूनिक निकलेगा ना, टेम्परेरी और ये कंपाउंड तो। उसका कंपाउंड अलग निकलेगा, टेम्परेरी भी अलग निकलेगा, लेकिन परमानेंट वाले का वो एक अच्छा, चार्ट बना के दिया वो हुआ था। याद, हाँ 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 हाँ। तो वो जब वो ही याद नहीं हुआ तो फिर बाकी तो कैसे होगा। देखो, जब तक आपको ये चीज टेक्निकली समझ में नहीं आएगी तो फिर आपको क्या फायदा? बिल्कुल सर, सॉफ्टवेयर में तो सारी चीजें दिख रही हैं, समझ में किसको आ रही हैं? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सुदर्शन चक्र किसके पल्ले पड़ रहा है? किसी के नहीं पड़ रहा। अगर मैनुअली बनाना आएगा, जब मैनुअली सिखाऊंगा ऐसे सुदर्शन चक्र बनाते हैं, फिर दिमाग में जाएगा ना आप लोगों के, फिर ही तभी आप सब गधों से घोड़े बनेंगे जैसे मैं बना। एक क्वेश्चन है, जी पूछिए। सॉरी, अगर दशानाथ ही शत्रु हो, किस जैसे बेसिक मेरी कुंडली में आ रहा है दशानाथ ही शत्रु है, दशानाथ कैसे शत्रु है? मैं सैटर्न की दशा चल रही है वही फर्स्ट, उसी से तो देखेगा ना। तो वो कभी शत्रु नहीं होता। अच्छा, दशानाथ इज नॉट शत्रु। दशानाथ कभी शत्रु नहीं होता, वो अपॉर्चुनिटी देता है इम्प्रूव करने की। दशानाथ को ट्रबल तब आती है क्योंकि उसके शत्रु होते हैं। जी। दशानाथ शत्रु तब होता है
उसके लिए प्रिंसिपल है कि वो मारक है, योग कारक है, क्या है, वो फ्रेंड है, एनिमी है, वो क्या है? हाँ जी श्रेया। सर ये जो हमने फ्रेंड्स और एनिमीज लिए हैं दोबारा वही, कि ये क्यों लिए हैं ऐसे करके और नीचे से वो देखिए उसमें इसमें क्या है, जो दशम भाव है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बड़ी सीक्रेटिव बात है। दशम भाव स्वर्ग है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि दशम भाव स्वर्ग, 10th हाउस इज द स्वर्ग। Why? Because Surya has 100% दिग्बला here. Okay? जब सूर्य का प्रकाश 100% चमक रहा होता है, सूर्य हमें ज्ञान देता है। अब हमें एग्जॉल्टेड सूर्य की जरूरत नहीं है। ओके? क्यों नहीं है? क्योंकि सूर्य कहता है आपने कभी मेडिटेशन नहीं करनी अपनी लाइफ में। सूर्य कहता है मेडिटेशन नॉट रिक्वायर्ड। सूर्य सेज कि जब मैं आऊं, बाहर आऊं, आपको दिखूं, तो आपकी आंखें खुली होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको रोशनी दे रहा हूं और मैं आपको सब कुछ दिखा रहा हूं। आपका विजन मैं हूं, आई एम योर विजन। अंधेरा मैंने खत्म किया, आपका विजन बढ़ाया। सूर्य ये कहता है। और सूर्य कहता है कि जब मैं आऊं आपके सामने तो आप उठे होने चाहिए। आप उठ गए 4:30-5 बजे, सूर्य देवता को आपने वेलकम किया और फिर आंखें बंद करके बैठ गए और मेडिटेशन करते करते सो गए। फिर एकदम से आंख खुली, 7 बजे उठे। सूर्य कहता है ये क्या कर रहे हो आप, पागल हो? मैं आपको स्वर्ग दिखाता हूँ। सुबह सुबह 5 बजे आओ गार्डन में, देखो फूल, हाँ ये देखो कितने सारे वो। लेकिन आप खुद अपने दुश्मन हो। You are your enemy. You said no, I will sleep for another 10 minutes. मैं अपना सुबह सुबह अपनी बेटी को उठाता हूँ, बेटा उठो स्कूल जाना है। पापा 5 मिनट, बस 5 मिनट सोने दो और, ओनली 5 मिनट्स। मैंने कहा बेटा 5 मिनट से क्या हो जाएगा, बस 2 मिनट और। फिर मैं उसको बोलता हूँ चल आजा, तू ऐसे कर, तू पॉटी कर ले और पॉटी करती करती सो जाना 2 मिनट वहीं पे, 5 मिनट वहां सो जाओ, यहाँ पे मत सो। हाँ, so that is why Lagna is not included in the friend. Your Lagna is not your friend. You always saying, want to sleep. The second house is your great friend, no? Whom do you love the most in your life? People will say, I love my family, I love my mother, my wife, my girlfriend, my children. I love you, my Guruji. You people are liars. You all are lying. You are big liar, each one of you. There is one thing without which you can't live, and you love the most, and you don't know that you love that thing the most. And the first thing that you love the most is this water. Your mother goes away one day, your father dies, your children grow up and they grow away, they just go away. Your wife can go away from this world, your husband can go away from this world. You will learn to live without them. This nature will force you to live without them. Can you live without this water? You cannot. But you don't say you love him. You love it, huh? So who is owning the second house? Venus. Venus is the Bisleri water, the drinkable water. He is your best friend. He is your best friend. And then the food is the second house. You can't live without food. You're bloody liars. You're saying you love your wife, you love food. Then you love your communication. Really. And you love your comfort. You love your bed.
in the 12th house, and you love all the money that you've got in the 11th house. Then come the children, 5th house. And now children want everything from you. दे दो, पैसे देना, ये देना, 5th house, ये देना. See, 5th house become the enemy. Oh, I ate so much now. I have a lot of pain in the stomach. 6th house. Oh my God, my digestion is gone for a toss. Your wife, कहाँ बैठे थे आप? क्या कर रहे थे? क्या खा रहे थे? आपने मेरी तरफ देखा ही नहीं, आपने मेरे साथ टाइम स्पेंड ही नहीं किया, आपने मेरे से बात नहीं की. आज ही किसी ने ग्रुप में चुटकुला डाला, कहता है कि आपने देखा कि आपकी वाइफ खाली बैठी है, तो जाके उसके साथ बैठ जाओ, फ्री बैठी है. बोलो खाली नहीं बैठी भैया, भरी बैठी है, साथ मत बैठियो. 7th house, your hidden enemy is 8th house. And then who were your enemies when you were in the school? You know that math teacher? That, my enemy was my biology teacher. She's always teaching me this and that. और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा. When I was young, I asked my mother, मम्मा मैं कैसे पैदा हुआ था? So my mother said that you fall from a lychee tree. Because I used to love lychees. So my mother said तू लीची के पेड़ से नीचे गिरा था, मैंने उठा लिया था. I believed, okay, lychee tree, give children. But then I went in my 8th class, my biology teacher, I think her name was Mrs. Mathur. She started teaching the class the reproductive system. That this is how somebody is born, this is the reproductive system. And I was in great trouble. I said, no, you come out from the lychee tree, What is this? Although it was no surprise to the girls, because girls knew it already. They were far more intelligent in understanding the reproductive system. And boys were looking here and there. It was nothing new for the girls. Girls knew it already. They were goddamn intelligent. Then the boys, I remember 7th or the 8th class, they knew everything. And we knew nothing. We were fools. So I thought, my teacher is my enemy in the schooling, 9th house. So all these 5, 6, 7, 8, and 9 are the enemies, bro. And from 10th house, everything starts your way. Did you get it? Can I take a break for 5 minutes? Sip a tea and come back. By the time you can complete your notes. Okay? Yes, ma'am. Yes, Neil. I'm sorry to interrupt you, sir. You were going on a break, but before you go, I just want to ask you one question. Supposing the Saturn Mahadasha is going on, and we are looking for the friends and the enemies, and Venus is conjunct with it. So Venus will be calculated. Venus is as the Lagna, na? So it is going to be an enemy. Okay. Because for अब friends, देखो ना, मेरे सूर्य के साथ क्या था? सूर्य के साथ 2 ग्रह जुड़े हुए थे ना? Yes, तो sir. वो Mars and लगना Mercury. कंसीडर होगा ना? Okay, right. लेकिन वो इवेंचुअली कंपाउंड में क्या आया वो देखना जरूरी है. Right, sir. आपका मान लो एनिमी आ गया और वहां पे नेचुरल में वो फ्रेंड है, ठीक है, तो इवेंचुअली एनिमी प्लस फ्रेंड कंपाउंड में न्यूट्रल हो जाएगा ना. Right, sir. सो वो इतना खराब नहीं Right. करेगा. Right. यस रचित जी. हाँ सर, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सर सपोज आपका प्लैनेट्स एनिमीज में आता है, ठीक है, अभी जैसे सैटर्न महादशा चल रही है एंड सर्टेन प्लैनेट्स एंड एनिमीज, बट दीस प्लैनेट्स आर कंपाउंड में, ठीक है, but these planets are well placed in the Vargas, okay,
So how does that play out? Because I remember you That's- mentioning that you see that's- Mahadasha from the That's the next step ना, that's what I'm going to teach, because हम सत जो है, जो आपको बल सिखाना है मैंने, वो यही सिखाना है। सत्वर्ग Okay. बल जो है कि मान लो आपने तो सिर्फ D1 में देखा, बट D9 में दिस इज गुड। ओके, तो मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि वो पॉजिटिव रिजल्ट भी देगा। Okay, ठीक है सर। Yeah. Okay, go take a break so we can start a new one. यस Yeah. या प्रवीण जी, यू वांट टू से समथिंग? एक ही सेकंड पूछना था गुरुजी, जी, जो जी, आपने please. ये कहा एनिमी में नंबर 1 लगना जो देखेंगे, तो अगर मान लीजिए कोई प्लेनेट की दशा आप देख रहे हैं, तो वो नंबर 1 तो वो दशा होगी ना, फिर वो दशा नाथ जहाँ बैठा होगा, दैट विल बी कॉल्ड लग्न फॉर दैट इज लगना फॉर दैट ना, फॉर दैट प्लेनेट, फ्लैट फॉर दैट प्लैनेट। उसके साथ जो बैठे होंगे, कंजंक्ट होंगे, हाँ वो वो हो जाएंगे, टेम्परेरी फ्रेंडशिप में वो नेगेटिव आएंगे, वो एनिमी। नेगेटिव आ जाएंगे। जी, दैट्स ऑल, थैंक यू।
Okay, so we can start now. My tea is under process, but we can start. Shall we start? Okay. Now, if you guys can turn on your cameras so that I can see the responses of you all, because it is now going to be little technical again. Okay, little more technical again. All right, and I need the responses from you people. If you don't understand anything, you people can just put it on the chat that आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, right? So let me hit the whiteboard again, and I can okay. So let me clear the screen. Ladies and gentlemen, there is something called Virupa points. Okay, just give me 1 second. There's a call. Okay, so Virupa points. So I want you to write down the Virupa points. For Moola Trikona sign placement, the Virupa point is 45. One. Just लिखते जाओ, बाद में लॉजिक समझ में आएगा. स्वक्षेत्र, स्वक्षेत्र means own house. The point is 30. For Ati Mitra, point is 20. For Mitra, point is 15. For Sama, neutral, point is 10. For Shatru, point is 4. For Ati Shatru, point is 2. Okay. अब यहाँ पे अपना एक टेबल बनाते हैं.
यहाँ पे लिखते हैं D1, ठीक है, ये है D1 चार्ट। D1 चार्ट में हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले सूर्य, सन, ठीक है। अब मेरा सूर्य कौन से साइन में है? जेमिनाई में, 3 नंबर में है सूर्य जेमिनाई के अंदर। यस नो? Yes, sir. क्या सूर्य का वो मूल त्रिकोण साइन है? नो, ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती। क्या वो सूर्य का ओन हाउस है? नो। नो। अब ये रह गई 5 कंडीशंस। मतलब सूर्य किसके घर में बैठा है? बुध के। आई विल हैव टू गो बैक एंड आई हैव टू चेक कि जो बुध है वो सूर्य के साथ क्या योग बनाता है। सूर्य के साथ बुध क्या है? एनिमी। शत्रु। शत्रु। तो मेरे सूर्य को पॉइंट्स क्या मिले? 4। 45 मिल सकते थे, 45 मिल सकते थे। अभी मैं बताता हूं इसको यूज कैसे करना है। चंद्रमा की तरफ जाए। चंद्रमा मेरा वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक राशि चंद्रमा की अपनी राशि है? नो। मूल त्रिकोण है? नो। नो। ठीक है। और चंद्रमा मंगल की राशि में है। मंगल के साथ संबंध देखें चंद्रमा का। मार्स नहीं, चंद्रमा, मून विद मार्स क्या है? मून विद मार्स क्या है? मून विद मार्स फाइनल संबंध क्या है? Enemy. Enemy. एनिमी। हाउ मच पॉइंट आई विल गिव? 4। 4। मार्स, मार्स कहां बैठा है? 3rd हाउस में। थर्ड हाउस। मूल त्रिकोण है? नो। सब राशि है? नो। अब संबंध देखते हैं। We'll see the संबंध in the software in this calculation. So Mars कर रहे हैं ना, मार्स का बुध के साथ क्या संबंध है? Great enemy. एनिमी। ग्रेट एनिमी। ग्रेट एनिमी। क्या स्कोर आया? 2। 2. 2। उसके बाद आता है मर्करी। मर्करी कहां बैठा हुआ है? इन दी जेमिनाई में ही है ना? Yeah. जेमिनाई क्या है उसका? Own house. ओन हाउस। ओन हाउस। 30। Mm. यस। ओके। फिर आ जाता है जुपिटर। जुपिटर कन्या राशि में है। वहां में ना तो मूल त्रिकोण है ना वो स्वक्षेत्र है। तो जुपिटर का संबंध देखते हैं मर्करी के साथ। Enemy. जुपिटर विद Enemy. मर्करी, अरे क्या कर रहे हो यार, Enemy. न्यूट्रल है। जुपिटर विद मर्करी क्या है? हाँ, न्यूट्रल। न्यूट्रल है कंपाउंड में। तो न्यूट्रल को क्या स्कोर देना है? 10। 10. उसके बाद वीनस। हम्म। ओके, वीनस मेरा बैठा है 4th में, कर्क में। तो कर्क तो ना तो मूल त्रिकोण है ना स्वराशि है, और चंद्रमा के साथ संबंध देखना है। सो वीनस का चंद्रमा के साथ क्या संबंध है? Great enemy. मित्र। ग्रेट एनिमी। Great enemy. वीनस, ग्रेट ठीक है। एनिमी। क्या स्कोर मिलेगा? 2. 2. ठीक है। सैटर्न मेरा किसके साथ है? किसके वर्गों में है? जी। सैटर्न का संबंध देखें मरकरी के साथ। सैटर्न जी। विद मर्करी क्या है? ग्रेट फ्रेंड। ग्रेट। तो क्या स्कोर मिलेगा? 2। ग्रेट फ्रेंड वाज A good friend, sorry. 20. 20। 20. ओके। राहु एंड केतु। राहु है मेरा चंद्र के घर में, केतु है शनि के घर में।
जी both are great enemies मेरे हिसाब से. So Rahu in the house of Saturn. राहु नहीं, राहु इज इन द हाउस ऑफ चंद्र, 4 नंबर में है ना, तो चंद्र क्या है? ग्रेट जी एनिमी. और Great केतु इज enemy. इन द हाउस ऑफ सैटर्न, तो सैटर्न क्या है? ग्रेट एनिमी. Great enemy. सो टोटल वहां पे लिखेंगे 2 + 2, 2 + 2. टोटल अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, मैंने किया हुआ है, 66 आता है मेरा. लगाओ जरा जोड़, 66 है सबको. सर 76 है. 76 गुरु जी. हाँ 76. 76 सॉरी, हाँ जी. 76 है. 30 और 20 50 जी और 10 60 तो यही हो गए, 60. बाकी जी सारे 76. आपको एक बात बताऊं, D1 का टोटल जो स्कोर आया, 76. इसको बोलते हैं वर्ग. जैसे आपको हम जो सिखा रहे हैं, वो हम आपको क्या सिखा रहे हैं? सप्तवर्ग बल. तो इसको हम बोलते हैं वर्ग बल. वर्ग मतलब, वर्ग का मतलब होता है चार्ट का बल. अब एक चीज आप ध्यान से सुनना, अगर किसी भी वर्ग का बल 100 से कम आता है, किसी भी वर्ग का बल 100 से कम आता है, वो चार्ट आपको रुलाएगा, जो भी उसका पर्पस है. लगन चार्ट का पर्पस क्या होता है? सबसे पहला पर्पस हेल्थ होता है, हेल्थ एंड लॉन्जिविटी. मुझे पता है कि मेरे साथ क्या होना है. ओके, हेल्थ एंड लॉन्जिविटी. आप देखते हो गला खराब, तबीयत खराब, ये वो, हम कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी कभी कभी कितने विघ्न आते हैं कक्षाओं में. ऐसे ही वर्ग आपने चेक करना है D9 में, D12 में. जिसका भी स्कोर 100 से कम आएगा, वो चीज आपको रुलाएगी. ओह. ओके, जो सॉफ्टवेयर है वो इंडिविजुअल स्कोर नहीं बताता. सॉफ्टवेयर आपको सप्तवर्ग 7 वर्गास का फाइनल स्कोर बता देता है. और वो कहां बताता है? वो षडबल में जाके बताता है. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, तो वो 7 वर्ग कौन कौन से हैं जो आपने देखने हैं? वो जो 7 वर्ग हैं, यू गो टू कैलकुलेशंस, यू गो टू डिटेल्ड शतबला. आप यहाँ पे देख रहे हो सप्तवर्ग बला. तो जैसे मेरा D1 में 4 था, ऐसे करते करते 7 वर्गों में टोटल 60 आया. मून का 75, वीनस का 106, जुपिटर का 112, सैटर्न का 142. ये है सप्तवर्ग बल आपका 7 वर्गस में. और वो वर्ग कौन कौन से हैं? व्हाट आर दोज वर्गस? जो वर्ग कैलकुलेट किए जाते हैं, जिनको कंसीडर किया जाता है सप्तवर्ग बल के अंदर, वो वर्ग हैं. द फर्स्ट वन इज द D1. What is D1? Guys, what is D1? D1 You is yourself. Lagna. Lagna. D1 is Lagna. Lag- You. You. Then the next one is D9. D9 is your Dharma and spouse. Darwin. Dharma, dignity of your planets and spouse. Then is D3. सिबलिंग्स. अभी आपको ये करवाया नहीं ना, जब करवाऊंगा तो फिर आपको पता लगेगा. अभी बेस बना रहा हूं. अभी D3 का कैलकुलेट कर भी लोगे तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा. देन इज D7, चिल्ड्रन. ये सप्तवर्ग है जिनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है. ओके, D7 के बाद D12, पेरेंट्स.
ओके फिर आता है आपका D7 हो गया, D12 हो गया, D3 हो गया, D कितने हो गए 1 2 3 4 5 5 फिर D2 आता है सॉरी D2 हाँ D2 आएगा हॉरा वेल्थ and और फिर D30 D30 जॉब मिसफॉर्च्यून्स सर इसमें D10 क्यों नहीं आता है? वो प्रोफेशन को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते इंसान ना प्रोफेशन के लिए केपेबल होता है उनको ये लगता है क्योंकि उन्होंने वेल्थ को इंपॉर्टेंस दे दी वेल्थ कहाँ से आनी है D2 से D10 से ही आनी ना उन्होंने D10 से ही है। तो इवेंचुअली वो कहते हैं कि आप वेल्थ को देखो ओके आपका प्रोफेशन अच्छा है नहीं है पैसे आ रहे हैं ना आपको खुश हो आप आपकी पोजीशन बड़ी अच्छी और 4 पैसे ना हो तो क्या फायदा वो वेल्थ को इंपॉर्टेंस देते हैं मुनि ये 7 वर्ग हैं जिनको कैलकुलेट किया जाता है पॉइंट सिस्टम आपने याद रखना है अपना ओके और आपने 7 वर्गों के आपने पॉइंट्स बनाने और मुझे आपने बताना है कि आपका कौन सा वर्ग कमजोर है मेरा तो D1 कमजोर है मैं आपको दिख ही रहा आपको मेरा D1 कमजोर दिख रहा है ना मैं बचपन में जब 3 दिन का था मेरा पानी खत्म हो गया और सुबह शाम करके टोटल 50 इंजेक्शंस लगे 25 दिन तक 3 दिन का था मैं फिर एक बार क्या हो गया मलेरिया हो गया जॉइंडस हुआ 2 बार बचपन में गलत पानी पी लेने की वजह से ठीक है अब इस समय में टाइप 2 डायबिटीज हो गया विच इज अ साइलेंट किलर तो आपको आपके D1 का पता लग ये आपका कोई मेरा कोई दोष नहीं है ये प्रारब्ध है कि लोगों की कुंडली देखी मदद की कर कर के बोझ बहुत है D1 के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ है और D1 में दिक्कत है परेशानी है तो इस तरह से आप सूर्य लिखो फिर लिखो D1 का स्कोर आया 4 फिर लिखो D2 का फिर लिखो इसका 7 वर्गों का स्कोर अब कई सॉफ्टवेयर जो D2 ये वाला D2 है ना इसको नहीं उठाते हैं देयर इज अनदर D2 जिसके बारे में अभी आपको मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा देयर इज अनदर D2 अगर सॉफ्टवेयर में मैच ना करे तो घबराने की जरूरत नहीं है 99% मैच करेगा ओके आई वांट यू टू लर्न दिस थिंग मैनुअली सो आपने क्या करना है आपके पास क्या है नेचुरल फ्रेंडशिप है उसके बाद आपके पास टेम्परेरी फ्रेंडशिप है उसके बाद आपके पास कंपाउंड फ्रेंडशिप है उसके बाद आपके पास पॉइंट है स्कोर कितने दिए गए हैं मूल त्रिकोण को स्वराशि को और मित्रता संबंधों को ठीक है वो पॉइंट्स आपने लिखते जाना है D1 में सूर्य के लिए लिख दिया चंद्र के लिए लिख दिया मंगल के लिए लिख दिया इसी तरह D1 के बाद आपने D9 का फिर उसके बाद D2 D3 D7 D12 पूरा चार्ट बना लिया एंड में आप स्कोर करोगे आपको वही स्कोर मिल जाएगा कि सूर्य को टोटल स्कोर मिला 66 चंद्रमा को टोटल स्कोर सभी चार्ट्स में से इतना मिला और उसको भी कैसे अप्लाई करना है वो अगला लेक्चर है कि सूर्य का टोटल स्कोर आपके सभी वर्गास में क्या बताता है आपको राइट चंद्रमा का टोटल स्कोर क्या बताता है सूर्य का स्कोर चंद्रमा से कम क्यों है चंद्रमा का मंगल से ज्यादा क्यों है वो क्या इंपैक्ट ला रहा है आपकी लाइफ में वो इसकी 3rd एप्लीकेशन है यस नंदिता Gurjeet, but for today's homework, you want us to find the score of each Vargas for now. Yes, I want you to tell me how strong is your each Varga and how bad is your each Varga. For me, D1 is not good. Right, but to do that,
we have to use the table that you just gave Yes. and look at the relationship, the compound relationship. Exactly. The compound relationship, you know, of different planets. अगर कोई planet मूल त्रिकोण में बैठा है D9 में, सीधा उसको 45 पॉइंट्स मिल जाएंगे। Hmm. अगर वो ऑन साइन में बैठा सीधा 30 पॉइंट्स मिल जाएंगे। उस टेबल पे जाने की जरूरत ही नहीं। वो टेबल पे तब जाना है जब वो मूल त्रिकोण में नहीं है। Okay. ठीक है ना? फिर लोग बोलेंगे वो मूल त्रिकोण में भी है और फ्रेंडली में भी है। तो हायरार्की क्या है? मूल त्रिकोण एक उठाना उसमें से। Okay, so the table will never, we're not adding points. One of these categories will One fit. of these, highest priority this and then this and then this and then this. You know, 2-3 नहीं उठा लेने। Got it. Okay, that makes sense. Yes, रचित जी। सर ये सॉफ्टवेयर में सप्तवर्ग बल में राहु केतु नहीं दिखाई देते? वो लेते नहीं ना, वही तो बात है। ये कई सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो राहु केतु के बल को बल ही नहीं मानते, क्योंकि अच्छा। वो ना उनको लगता है कि ये जो है सब जो ये राहु केतु है फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। आप देखो ना षटबल के अंदर भी राहु केतु का कोई बल ही नहीं दिखाया जा रहा। यस। लेकिन मेरे गुरुजी जो षटबल में भी राहु केतु का बल मानते हैं। जैमिनी सूत्र में 99% एस्ट्रोलॉजर राहु केतु को अमत्य कारक या आत्मा कारक मानते ही नहीं, लेकिन हमारे गुरुजी मानते हैं। एक लेगेसी है। सो ये इसमें दो पद्धतियां हैं, जो वो पद्धति जो इसको मानती है और एक वो पद्धति जो इसको मानती नहीं। यहाँ पे जो स्कोर आया वो विदाउट राहु केतु आया। कौन सा स्कोर? कॉम्यूटेटिव स्कोर आएगा ना, नीचे एक और कॉम्यूटेटिव स्कोर भी है, वो शतबल का स्कोर होता है। दैट आई विल टीच यू बाद में नेक्स्ट लेवल पे। हाँ, उसमें बाकी चीजें भी आती है, चेष्टा बल, काला बल। वो अभी सिखाए नहीं ना आपको। बिग बल। हाँ हाँ हाँ। अभी हमने सिखाए मैं नहीं पूछा था कि उसमें राहु केतु नहीं दिख रहे थे। हाँ, जैसे मेरे को ज्योतिष आचार्य में किसी ने बोला था सर षटबल सिखाओ। अरे षटबल कहाँ से सिखाऊं आपको? कहाँ से बताओ, कहाँ से आपको बेवकूफ बनाऊं मैं? पहले ये सब सारे बल सिखाऊंगा फिर षटबल पे आऊंगा ना। लोग कैसे स्टेटमेंट देते हैं, मेरे मंगल का षटबल थोड़ा ज्यादा है, शुक्र का षटबल जा रहा है, पता है नहीं कुछ। करेक्ट। थैंक यू सर। So I hope सर हरे कृष्ण सर। सर ये जो सॉफ्टवेयर में कंपाउंड और तीनों हैं, जो फ्रेंडशिप्स, मित्रता, ये कैसे देखेंगे सॉफ्टवेयर के थ्रू? कुछ नहीं करना। ये देखो, आप यहाँ पे गए अपने इस पे, जो राइट लेफ्ट प्लस माइनस की जो की होती है ना, राइट लेफ्ट अप एंड डाउन की, ये डाउन की दबाते जाना है। अच्छा, डाउन की दबाते जाओगे, आपके पास सारे चार्ट्स आते जाएंगे और इवेंचुअली आपका रिलेशनशिप आ जाएगा। डाउन की दबाते जाओ। ओके सर, थैंक यू। जितने भी चार्ट्स आपने देखने ना पराशरा में, वो डाउन की दबा के आपने देखते जाना है। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर concept? No problem. It was a little difficult concept, but we have tried to make थोड़ा देखो tedious है, हर एक का बल निकालना, और इंटरेस्टिंग भी है ना। आपको पता लग जाएगा कि आपकी आंसू कहाँ है, शरीर में है, पत्नी दे रही है, बच्चे दे रहे हैं, माँ बाप दे रहे हैं। where are you going to cry? Which varga is going to give you lot of pain? You will come to know. अरे वही तो देखना, अभी तो बताया आपको, कंपाउंड नीचे ही तो है उनके रिलेशनशिप के, और उसके नीचे ही तो है। कंपाउंड तो दिया ही हुआ है उसमें सॉफ्टवेयर में, सबसे पहले ऊपर नैसर्गिक दिया हुआ, ये देखो ना, इट इज ऑलरेडी गिवन, इट इज द कंपाउंड व्हिच इज गिवन, दिस इज द कंपाउंड, दिस इज कॉल्ड पंचदा, दिस इज पंचदा, इट इज ऑलरेडी गिवन। पंचदा वाई? बिकॉज यहाँ पर 5 प्रिंसिपल्स हैं,
इसमें ग्रेट एनिमी और ग्रेट फ्रेंड भी है। सिर्फ पहले यहाँ पे सिर्फ 3 प्रिंसिपल्स ही थे, फ्रेंडशिप थी, न्यूट्रल थे और एनिमी थे। फ्रेंडशिप, न्यूट्रल, एनिमी। यहाँ पे पंचदा है, पंचदा मीन्स 5 प्रिंसिपल्स। स्कोर तो पंचदा से देखना है ना, स्कोर पंचदा से देखना है, क्योंकि जो 7 आपको क्या बताए हैं, 7 क्या बताए हैं आपको, कौन से पॉइंट्स बताए हैं? 7 विरूपा पॉइंट्स, जो विरूपा बताए वो 7 है ना। 7 है उसमें जी, पंचदा प्लस मूल त्रिकोणा और स्वराशि, स्वक्षेत्र। स्वराशि जी। तो वो इससे बने, ये सारी टेक्निकल टर्म्स है संस्कृत की। जी सर इसमें कोई एक्सॉल्टेशन डेबिलेशन नहीं है ना? Exaltation is never a good thing in a chart. Or when you will learn the advanced concepts, na, people who have debilitated, exalted, they feel so proud of that planet. It is nothing. That उसकी दशा कुछ करती ही नहीं है. You will learn this with the period of time. It's not even taken as any of the Virupa points also. Exaltation लिया ना उन्होंने सबसे पहले जब आपका नेचुरल बल निकाला. अरे सिर्फ एक्सॉल्टेशन उसमें किया ना, नेचुरल जो नेचुरल संबंध निकाला उसमें एक्सॉल्टेशन तो लिया ही था। ओके, वो नेचुरल संबंध था। ओके। हो ठीक है, Yes. lot of homework. Yes, Raju ji. Hare Krishna, sir. Hare So when you have sun in the house of sun itself, do we consider it to be Multrikona or Own Swarashi? sign, स्वराशि ना। Yeah. ओके, आपको मूल त्रिकोणास नहीं पता है किसके कौन कौन से हैं? No, you said the other day that for sun it is in Leo itself. Yes, no? लियो। सो सूर्य का लियो है। So here do चंद्रमा we का, take? चंद्रमा का कौन सा है? टॉरस। तो Yeah, अगर yeah. सूर्य No, but अगर yeah. एरीज में है सूर्य, Hmm. तो वो एक्सॉल्टेशन उसका कुछ नहीं है। अगर सूर्य 5th हाउस में है, राइट, तो सूर्य किस में हुआ? एक तो स्वराशि में हुआ और एक मूल त्रिकोण में हुआ। तो आप कौन सा बल लोगे इसमें? जो हाईएस्ट रैंकिंग वाला बल है, विच इज 45 पॉइंट्स। The 45, yeah. Okay. So say here, when we are talking the number of house number, we are talking of the sign or the house itself? किसमें? जब Sign. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, साइन की बात कर रहे हैं, इन दी Sign, फाइनल right. आउटकम। Okay, so we don't bother whether it's appearing in the 12th house. We just consider the sign. No, Raju ji, the मूल त्रिकोणा and the Swakshetra is going to be sign based thing, na? Exactly. Yeah. It is not a So house in- based thing. No, I'm saying that because I was calculating it, just I was a bit confused for sun. The others I Yeah. got it. So for sun, should we consider 45 because my sun is in Leo itself? So you can't So- give more than 45. No, that is the Exactly. So it's not 30. I don't consider 30, 45 then. Yeah. All right. Thanks. Yes, Sumati. हरे कृष्ण सर। हरे सर कृष्ण। ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी चार्ट में 100 से कम स्कोर ना हो वर्गा में। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। भगवान कृष्ण के था। आपको पता है, बहुत मजेदार रिसर्च है, आप देखोगे आपको मजा आएगा। आपको पता है, मुनि पराशर कहते हैं कि हाईएस्ट स्कोर ना 150 हो जाना चाहिए। वैसे एवरेज अभी बताते हैं, इसके अभी आप आगे डीप मत जाना, मतलब मैक्सिमम 150 तक जा सकता है। या फिर एक मुनि आए, उन्होंने कहा, गर्ग मुनि थे, गर्ग मुनि, उन्होंने बोला कि 180 तक जाएगा। युग बदला ना, तो बोले मैक्सिमम जो स्कोर जा सकता है 180। भगवान कृष्ण का 215 D1 में। D1 में, जैसे मेरा 66 है, भगवान कृष्ण का 215। तो बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। जितना एडवांस जाओगे उतना स्विम करोगे।
क्योंकि कई चीजें फेल होती हैं आगे, आगे से आगे, आगे से आगे। हो any confusions to anyone? No confusions? Crystal clear? Great. Fantastic. So see you Sir. next. Yes, sir. पेंडेंट दे दीजिए कोई, क्या दे दीजिए? पेंडेंट दे दीजिए कोई। आपको पेंडेंट दे दे। चलो इस साल में देंगे आपको पेंडेंट। ठीक है। ठीक है। Thank you, Shashank ji. You have full scores. Thank you so much. ठीक है, so I'll सर hit ये होमवर्क कल के लिए